So first of all, very good morning, all of you. I hope you all are well. My appeal to you all that you know that the third wave is just coming in our country as well. Delta plus variant is now active, and you heard the news that in England, 7 players, including the staff members, get COVID positive. Okay, so it is alarming situation now. You have to alert yourself, and you have to advise your parents that if they don't get vaccinated, so firstly they have to go and vaccinate themselves. A slot, firstly you have to book your slot if you are 45, you are below 45, and if your parents or grandparents are above 45 plus, then they will directly get vaccinated themselves. Okay, but you have to advocate that they should vaccinate. Okay, because this is the only way to protect from this deadly disease called COVID-19. Okay, so please don't take this thing as a fun. This is a serious issue. Lots of deaths were already occurring in our country. You heard the news, and there might be a chance that the third spike will come. Okay, in our country. So please do get prepared yourself. Okay. Now moving on back to the business. First of all, yesterday we have discussed types of computer generations, right? Computer generations and its type, right? Now I was told you few important topics that you would prepared. Okay. So firstly, I have told you that you have to prepare for computer memory. Okay. So can anyone tell how many types of computer memory? Students, can anyone tell how many types of computer memory? Sir, primary memory and secondary memory. Who's telling this? Ayush. Ayush Jaiswal. Sir, Himanshu Kashyap. Himanshu Kashyap, very good beta. Actually, there are two types of computer memory: the primary memory and the secondary memory. Okay. So, as obvious, primary memory is the main memory of the computer, and the secondary memory is the memory which is required later on. Okay. Wait for a moment. Actually, the student is coming. Just give me a minute. What happened? कॉपी करेक्शन अभी पूरा क्लास चलने बाद में आइएगा, ठीक है? आप कुछ और चीजें करा ली फिर मैं भी बोलिए. ओके. नाउ ये काम करिए, आप कॉपी को सबमिट कर दीजिए, मैं आप एकदम फ्री होकर चेक कर दूंगा. ठीक है, कॉपी सबमिट कर दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए. ओके, फिर आप और चेक करा लीजिए. ओके. ओके क्लास. नाउ the question comes that why there are two types of memory. The things comes on your mind that why there are two types of memories. Actually, the both two memories have different work. The primary memory is the memory which is the core of your computer memory, like RAM, ROM, cache. All these are the three main important memory in primary memory. So there are mainly three memories in primary memory, that is RAM, ROM and cache. You definitely heard the name of all these three memories, right? Right or wrong? Students, you heard the name of these memories, na? RAM, ROM and cache. Tell me. Yes, sir. Okay. So first of all, tell me what is cache? Yes, sir. What is RAM? Yes, sir. Can anyone tell what is RAM? What is RAM memory? Yeah, what is RAM? Random access memory. Very good. Random access memory. Okay. So if you go to the notes, I'm just revising that. Just wait for a moment. I'm just sharing the doc. Actually, I'm just sharing the doc right now. Okay. Here's the doc. Okay. Look. We have to categorize computer memory into two parts: primary memory and secondary memory. In primary memory, we have mainly three types of memory: RAM, ROM, and the third one is the cache. I have didn't mention this thing, but cache is the cache memories comes under the primary memory. And in terms of secondary memory, we have three memories: hard disk, CD, and pen drive. These are the secondary memories. Okay. Now, first of all, let's read about primary memory. What is primary memory?
So the primary memory is the main memory of the computer. As I told you earlier, that the primary memory is the main memory of the computer. That means it is the backbone of computer memories. Okay, if these memories, that means RAM, ROM, and cache will be removed, then your computer performance definitely, your computer will not perform the task. Okay, so that's why these are called the primary memory, or it is called the main memory. Okay, the accessing data. Wait. The accessing data from the primary memory is faster because it is the internal memory of the computer. Just because of that, if anyone asks which memory is faster, primary or secondary, you will say that the primary memory is faster than secondary memory. Just because of that, it is the internal memory of the computer. That means if you give the example of your mobile, in your mobile, your RAM, your ROM, and the cache will be intact in your mobile only. Okay, you will not remove the RAM, ROM, and cache from your mobile. Okay, so these are the primary memory. And if you talk about the secondary memory, your memory card, the SD card or memory card. Yes. So these are the secondary memory. You will remove this memory card. Okay, so if anyone asks which memory is fast, you have to answer that the primary memory or the primary memory is faster than the secondary memory. Reason behind that, it is the internal part of primary memory, is the internal part of your computer system, and you will not remove this memory. Okay. One more thing is added now. The primary memory is the most volatile, which means सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. is not saved and its power failure occurs. Okay, and the important point is that you have to learn, you have to keep this thing on your mind, that primary memory is volatile in nature. Primary memory is volatile in nature. It means that it will not save any data or information once the power is cut off. It means that no data or information would be saved if the power is cut off. अगर पावर कट हो गई तो कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन सेव नहीं होगी. जैसे ही पावर गई, सारा डेटा फ्लश आउट हो गया. ओके, अगर आपने इंफॉर्मेशन सेव नहीं की है तो सारा डेटा फ्लश आउट हो गया. यानी कि इट इज अ वोलेटाइल इन नेचर. वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जैसे कैम्फर आपने जलाया, खत्म हो गया, है ना. कैम्फर माने कपूर में जैसे आप आग लगाते हैं कैम्फर में, जैसे वो बर्न हो जाता, बर्न होने के बाद खत्म हो जाता है, इसके बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता. उसी तरीके से प्राइमरी मेमोरी के साथ भी होता है. It is volatile nature. Once the computer is on, it is working fine. Once the computer is shut down, all the data is removed if it is not saved. Okay, in primary memory. So I think you have got it. I have. When I was taking the class, I will also see you the videos of photos of the semiconductor memories. So the primary memory is a semiconductor memory. So why we call it a semiconductor? Because it is made up of the semiconductors like silicon. It is made from the semiconductor named silicon, because the silicon is a semiconductor. Through this primary memory is made up of. That's why it is called a semiconductor memory. It is a costlier compared with secondary memory. Obviously, the performance is fast. It is most delicate memory. That's why the cost of it is much higher than secondary memory, because it is costlier. The capacity of primary memory is very much limited and is always compared to secondary memory. Okay, the important point is that the capacity of primary memory is very less. That means that we have not stored a large volume of data in primary memory. You know that your RAM size is 4 GB or 8 GB, but your hard disk size is 1 terabyte, 2 terabyte. Okay, so definitely the size of the primary memory is lesser than the secondary memory, and it is also costlier, much more costly than secondary memory. Okay, so it is higher in price. It is it store less data, or its storage capacity is lesser than the secondary memory. These are the features of the primary memory. Okay. Now I have told you the types of memory: RAM, ROM, and cache as well. Now we have to discuss about RAM. What is RAM? What is RAM? RAM stands for random access memory, which is known as RAM. Is generally the main memory of your computer system. I told you that RAM is the main memory of your computer system,
and it is called the temporary memory or the volatile memory. We call this RAM as a temporary or volatile memory. The information stored in this type of memory is lost when the power supply of the PC is switched off. I told you that when the power is off, when your PC is off, so all the data information which is stored in your primary memory will be lost. Okay, तो तब जैसे कंप्यूटर बंद करेंगे, जैसे आप स्विच ऑफ करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन सारी खत्म हो जाएगी, फ्लश आउट हो जाएगी. जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे फिर से चीजें स्टार्ट होंगी. ठीक है, जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे फिर से रैम में सारा डेटा लोड होता है. ठीक है, तो रैम बिल्कुल एक तरीके से स्विच ऑन और ऑफ की तरीके वर्क करता है. ठीक है, जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया और स्विच ऑन हो गया, जैसे कंप्यूटर बंद किया स्विच ऑफ हो गया रैम का. ठीक है, कोई भी डेटा इसमें स्टोर नहीं होता परमानेंटली. समझ आई बात? यस सर. चलिए, अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है. Secondary is ROM, that is read-only memory. Now we have to discuss what is read-only memory. It is stand for read-only memory. It is the permanent type of memory. Actually, this is the permanent memory. Permanent memory. Why it is called the permanent memory? Just like any disk. कोई disk होती है, कोई chip होती है. किसी चिप में कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया, जैसे मैं अगर बात करूं आपके वॉशिंग मशीन की, तो वॉशिंग मशीन में कुछ चिप होती है ना, इसके थ्रू आपको पता हो. तो अगर आप किसी के घर में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, एनीबडी हैव ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन? कोई किसी के घर में है? चलिए, अगर नहीं तो मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ. एक्चुअली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का फंक्शन ही होता है मेरे बच्चे कि जितनी भी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसमें जो आपने अगर उसको 15 मिनट के लिए सेट कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली 15 मिनट्स के लिए वो वॉश करेगा. ऑटोमेटिकली 15 मिनट बाद वो उसको निकाल करके दूसरे ड्रेनेज में डाल देगा. ठीक है, तो ये क्या होता है, सारा काम ऑटोमेटिक होता है. आपको कपड़े अलग से निकालने नहीं पड़ते, आपको कुछ भी नहीं करना होता, खाली आपको सर्फ डालना होता है, दैट्स इट. पानी डालना होता है, बस वो अपने आप सबको मैनेज कर देता है. तो ये क्या होता है, ये सारी चीजें एक इंस्ट्रक्शंस के रूप में सेव हैं, एक इंस्ट्रक्शंस के रूप में सेव करी गई है कंप्यूटर उसके प्रोसेसर में डाली गई है मशीन के. ठीक है, यानी सब कुछ रेडीमेड डेटा लिखा हुआ है, उसमें आपको कुछ करना नहीं है. तो यही है ROM. तो it stands for read only memory, the permanent type of memory. It consists of low cost when the power is supply switched. The computer manufacturer decided the information in ROM and is permanently stored at the time of manufacturing, which cannot be override the user. Whereas में जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते. It is a permanent memory. जो भी इंस्ट्रक्शंस चिप में लिख दिए गए हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं. तो जो ये कह सकते हैं एक परमानेंट मेमोरी होती है और इसमें जो भी चीजें उसको ओवरराइट नहीं कर सकते हैं. समझ में आई बात? बताइए, समझ में आई नहीं समझ में आई? यस सर. ठीक है. सेकेंडरी मेमोरी क्या है? ऑल द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस व्हिच आर केपेबल ऑफ स्टोरिंग हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा रिफर्ड एज सेकेंडरी मेमोरी. जितना भी आपने हार्ड डिस्क का नाम सुना होगा, पेन ड्राइव का नाम सुना होगा, ये सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में आती हैं. इवन द CD और DVD भी है सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में आते हैं. वी हैव टू स्टोर हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा इन दिस सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस. सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस है, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, इट इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है इन कंपैरिजन विद सेकेंडरी मेमोरी. तो ये जो होती है, ये जो प्राइमरी मेमोरी इज secondary memory is slower than primary memory. However, it can save the sustainable amount of data. Sustainable का मतलब होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा सेव कर सकती है. द रेंज इन गीगाबाइट टू टेराबाइट. मैंने बताया था इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, गीगाबाइट से टेराबाइट तक. द मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड द बैकअप स्टोरेज और द मास स्टोरेज मीडिया. इसमें बहुत सारी इसमें चीजें बहुत ज्यादा वॉल्यूम में स्टोर हो सकती है. इसके जो मेन एग्जांपल होते हैं, हार्ड डिस्क होती है, CD होती है और DVD होती है. समझ में बच्चों बात आई? बताइए. यस सर. इजी डिफिकल्ट है? यस सर. इजी. ठीक है, चलिए, अगर आप कह रहे हैं तो इजी मैं मान लेता हूँ. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी की. अगर प्राइमरी मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो द कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी. कोई भी कंप्यूटर बिना प्राइमरी मेमोरी की मदद के रन नहीं कर सकता. इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? समझ में आई नहीं समझ में आई? इट इज नोन एज द मेन मेमोरी. इसको कंप्यूटर क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी. You have to lose data in case of power is switched off. वहां पर जैसे ही पावर जो होती है स्विच ऑफ हो जाती है, अपने आप चीजें जो होती है बंद हो जाती हैं. इसके अलावा इट इज ऑल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी. ये वोलेटाइल मेमोरी कही जाती है क्योंकि इसमें डेटा जो होता है लॉस हो जाता है. इट इज वर्किंग मेमोरी. इट इज द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. ये कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी होती है.
एंड द प्राइमरी मेमोरी फास्टर कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। ये बात होता है, ये सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होती है। अगर सेकेंडरी मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दे आर द मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी। इनको मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी नोन इज द बैकअप मेमोरी। इसको बैकअप मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ नेचर। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, इसमें डेटा जो होता है परमानेंटली स्टोर होता है, डेटा लॉस नहीं होता पावर ऑफ स्विच ऑफ के बाद। डेटा स्टोर परमानेंटली इवन द पावर ऑफ द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। इट इज हेल्प टू स्टोर डेटा इन कंप्यूटर। डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए काम आता है। द मशीन कैन रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। जो भी मशीन है बिना सेकेंडरी मेमोरी के भी रन कर सकती है, स्लोवर देन प्राइमरी, प्राइमरी मेमोरी से स्लो होती है। तो ये इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं। समझ में इतनी बात आई बच्चों? यस। चलिए ठीक है। अब एक बात समझ लो, एक मेमोरी के बारे में बताने वो कैशे मेमोरी। कौन सी मेमोरी? कैशे मेमोरी। सब जो भी बता रहा हूँ उसको नोट करते जाना, ठीक है? चाहोगे तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है? हालांकि आप लोग YouTube पे जाइए, मेरे सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है, देख सकते हैं। YouTube जाते चैनल सब्सक्राइब किया हुआ सिद्धार्थ टेक गुरु, जा करके टॉपिक वाइज सब चीजें देख सकते हैं। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आप लोग मुझको कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है? यस। What is cache memory? It is a special type of memory used for speeding up the transferring of data instruction. Actually बच्चों क्या होता है, कैसे कैशे लाइक अ बफर। एक्चुअली क्या होता है, जिससे बच्चों आप लोग जब कोई नया कंप्यूटर लाते हैं तो आप लोग जानते हैं कि जैसे नया कंप्यूटर जब आता है घर में, तो एकदम ब्रांड न्यू कंप्यूटर होता है, जब उसको खोलते हैं और जब भी आप सर्च करते हैं, उसको सर्च करने में टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम लगता है। टाइम क्यों लगता है? क्योंकि उसका कंप्यूटर की मेमोरी एकदम ब्लैंक होती है, कंप्यूटर की कैशे एकदम ब्लैंक होती है, तो उसके पास कोई डेटा नहीं होता है, कोई डेटा नहीं होता है, ठीक है? जब उसके पास कोई डेटा नहीं होता है तो उसको चीजें सर्च करने में टाइम लगता है, ठीक है? तो अगर जैसे मान लो, अगर हम बात करें आपको, अगर हम आपको स्कूल में अगर आप मान लीजिए जब पहली बार अगर आपको हम कहें कि आप अपने घर में जाइए और वहां से क्या बोलते हैं, शेल्फ से एक पर्टिकुलर बुक, कंप्यूटर की बुक निकाल के लाइए। आप अपने घर में जाइए, घर में शेल्फ में जाइए, शेल्फ से या मेरे घर जाइए, मेरे घर में जा करके मेरी रैक में से कंप्यूटर की बुक निकाल के लाइए, ठीक है? तो आप लोग पहली बार जब जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा ना ढूंढने में कि शेल्फ कहाँ है, बुक कहाँ कहाँ रखी हुई है ना, सब चीज ढूंढने में टाइम लगेगा ना। बताइए टाइम लगेगा नहीं लगेगा? अगर आपसे पहली बार मैं कहूँ मेरे घर जा करके मेरी शेल्फ से कंप्यूटर की बुक निकाल के लाओ, तो कितने लोगों को टाइम लगेगा ये बताइए? पहले ढूंढना पड़ेगा ना शेल्फ कहाँ है, बुक कहाँ रखी, राइट? ठीक है। यस सर। अगर मैं ये काम आपसे रोज कहूँ, रोज करिए, रिपीटेड ऑर्डर में करिए, तो वो चीज आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है ना, एक जगह स्टोर हो जाती है दिमाग में कि यहाँ पर्टिकुलर जगह पे सर का घर है, इस पर्टिकुलर जगह पे सर की रैक है, इस पर्टिकुलर बुक है, इसको सर ने मंगाया है, तो आपके दिमाग में बात ऑर्डर में बैठ जाएगी ना। बताइए। यस सर। उसी तरीके से Yes, कंप्यूटर की मेमोरी में भी होता है। कंप्यूटर की मेमोरी के साथ क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं रोज जूम ऐप खोलता हूँ, तो मुझे जूम ऐप जैसे मैं जेड टाइप करता हूँ ऑटोमेटिकली उसके सजेशंस में दिखाने लगता है जूम, है ना? इसके अलावा जैसे ही मैं उसको खोलता हूँ 1 सेकंड से भी कम टाइम में वो खुल जाता है, ठीक है? एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर का जो स्टोरेज है, उस कंप्यूटर की जो कैशे मेमोरी होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो जाती है? कंप्यूटर के कैशे में स्टोर हो जाती है। तो उसको पता होता है कि ये यूजर क्या यूज करता है, इसकी यूजर की प्रेफरेंस क्या है, ठीक है? तो यही लिखा हुआ है, द कैशे मेमोरी इज द स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी व्हिच इज यूज्ड फॉर स्पीडिंग अप द ट्रांसफर ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन। स्पीड अप कर देता है। अगर आपको पता नहीं है चीजों को तो टाइम लगेगा ना। अगर उसको कंप्यूटर को पता है कि ये बंदा यही पर्टिकुलर आइटम को बार बार सर्च करता है, तो उसको स्पीड अप कर देता है, उस काम को तेज कर देता है, ताकि डेटा जो होता है फास्ट ट्रांसफर हो सके। समझ में बात आई नहीं समझ में? ये बताइए। यस सर। चीजों को स्पीड अप कर देता है, ठीक है? द स्पीड अप ऑफ सीपीयू इज मच हायर देन द एक्सेस टाइम ऑफ द मेन मेमोरी। एक्चुअली क्या है, दो बातें होती हैं। अगर बच्चों क्या होता है, मान लो देखो आपको पता है जो हमारा कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है सीपीयू, उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर उसमें लगा हुआ बहुत फास्ट होता है, वो नैनो सेकंड में चीजों को एक्सेस कर लेता है, ठीक है? पर जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, जो मेन मेमोरी होती है, उतनी फास्ट नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली होता ही है बच्चों कि जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, देखना मुझे, ये मान लो सीपीयू है, ये मान लीजिए
माइक्रो, ये सीपीयू है, सीपीयू की माइक्रो, ये सीपीयू का प्रोसेसर है। ये बहुत फास्ट होता है, ये बहुत फास्ट होता है, क्या होता है? फास्ट, ठीक है। और ये जो प्रोसेसर होता है, ये मान लो रैम, ये मान लो रैम है, ये मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी, ठीक है। ये क्या होती है? स्लो होता है। ये कैसा, ये क्या चीज होती है? स्लो होती है। क्या होती है? इसे स्लो, ये स्लो होती है, ठीक है। मेन सीपीयू फास्ट होता है और मेन मेमोरी स्लो होती है। तो जब मेन मेमोरी स्लो होती है तो बच्चों दोनों में इंस्ट्रक्शन बहुत इजीली एक्सेस नहीं हो पाते, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे रैम जो होता है, तो जब डेटा ट्रांसफर होगा तो धीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। क्यों? बहुत धीमे होगा। क्या होगा? बहुत धीमे होगा, स्लो होगा। तो डेटा ट्रांसफर होगा और स्लो होगा। डेटा ट्रांसफर इज स्लो, डेटा ट्रांसफर क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेटा ट्रांसफर क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। क्यों? एक तेज एक धीमा है, मान लो एक तेज और एक धीमा है, तो बड़ी बात है दोनों में मिसमैच हो जाएगा और चीजें स्लो हो जाएंगी, है ना? समझ आई बात? तो अगर ये स्लो हो गया, अगर डेटा ट्रांसफर स्लो हो गया, तो आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। तुम्हारी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। अगर दोनों मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में अगर परफॉर्मेंस स्लो होगी तो आपकी अल्टीमेटली आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक नई टाइप की मेमोरी इंट्रोड्यूस की गई है, वो होती है कैशे मेमोरी। क्या होती है? कैशे मेमोरी। वो क्या होती है? कैशे मेमोरी, ठीक है। कैशे मेमोरी क्या करती है? इसमें ये इंफॉर्मेशन बफर में स्टोर कर देती है। क्या करती है? कैशे मेमोरी। इसको बफर भी बोलते हैं, बफर मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बफर, बफर भी बोलते हैं। बफर क्या करता है? इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर हो जाती है तो डायरेक्टली जो होता है कंप्यूटर मेन मेमोरी में, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती रहती है, पर ये डायरेक्टली जो होता है, जो मेन मेमोरी होती है, ये जो प्रोसेसर होता है, डायरेक्टली इससे इंटरेक्ट करता है। किससे इंटरेक्ट करता है? कैशे मेमोरी से। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली कैशे मेमोरी बहुत फास्ट होती है, तो क्या होता है, डेटा उसमें स्टोर रहता है परमानेंटली। तो बहुत तेजी से सीपीयू को जो भी डेटा चाहिए होता है वो इजीली एक्सेस कर लेता है। किससे? कैशे मेमोरी से। उसको बार बार मेन मेमोरी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए सीपीयू का जो प्रोसेसर है किससे कनेक्ट होकर? कैशे मेमोरी से। उसको डायरेक्ट रैम के पास नहीं जा रहा है, और कैशे मेमोरी ऑटोमेटिकली बहुत फास्ट है। तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपकी कंप्यूटर परफॉर्मेंस क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। बहुत महंगी मेमोरी होती है, ठीक है, याद रखिएगा ये कैशे मेमोरी। और जितना अच्छा आपकी कैशे मेमोरी होगी उतनी अच्छी आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होगी। गॉट इट? गॉट इट और नॉट? देखिए ये Yes, लिखा sir. हुआ है, it is a special type of memory used for speeding up the transfer of data instruction. The speed of the CPU is much higher than the access time of the main memory. This affects the performance of the CPU due to the lower speed of the main memory. To overcome this problem, the special type of memory chip is invented called the cache of the RAM. It stores the data and program that frequently used by the CPU. So any data is required, first cache is checked. The memory will expensive in compared with main memory. ये main memory थोड़ी महंगी होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये बच्चे कि अगर सीपीयू को कोई भी इंस्ट्रक्शन चाहिए होता, कुछ भी पता करना होता है, तो रैम में नहीं आता, क्योंकि रैम के पास जाएगा उसको टाइम लग जाएगा ढूंढने में। तो क्या सबसे पहले उसको सीपीयू को कुछ भी पता करना कहाँ जाएगा? कैशे के पास जाएगा। कैशे के को पता है कि कहाँ पे चीजें रखी हैं, ठीक है। तो कैशे जल्दी से ढूंढ करके वो चीजें रैम को दे देता है और प्रोसेस अपने आप फास्ट हो जाता है। तो जो कंप्यूटर जो होता है उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है अल्टीमेटली। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसका? कंप्यूटर, ये पूरा प्रोसेस होता है कैशे मेमोरी का। कितनों को समझ में बात नहीं आई ये बताइए? अभी भी नहीं आई? और नहीं आई तो पूछ सकते मुझसे फौरन आप। सर आ गए। रौनक बेटा समझ में आई बात? जी सर आ गए। वेदांश समझ में आई बात? वेदांश समझ में आई बात? अली हमजा गॉट इट? Yes, sir. चलिए देखते हैं, पढ़ते रहिए, ठीक है। नाउ द और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, वो है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। अलग अलग यूनिट्स होती हैं, तो जब तक क्वेश्चन में आ जाए, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी।
तो ऑल द इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर हैंडल्स बाय यूजिंग सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल 0 and 1। मैंने आपको कई बार बताया है, जो भी डेटा स्टोर होता है अल्टीमेटली कंप्यूटर के हार्डवेयर में 0 और 1 के सिग्नल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। यानी 0 1 के सिग्नल्स के रूप में कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है। 0 का मतलब ऑफ स्टेट होता है और 1 का मतलब ऑन स्टेट होता है। और ये जो 0 1 जो होते हैं कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? बिट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बिट्स, BITS, बिट्स। जो डेटा होता है कलेक्टिवली क्या कहलाता है? बिट्स या बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं ना। A bit is therefore the smallest unit of data in computer that can store 0 and 1। तो bit जो होता है बहुत ही छोटा डेटा होता है जिसमें 0 और 1 की फॉर्म में डेटा स्टोर कर सकते हैं। सॉरी, इसके अलावा the smallest unit of binary digit is bit or can hold a signal 0 and 1। तो जो डेटा के सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट, जिसमें 0 या 1 स्टोर हो सकता है। The sequence of 4 bits, जो 4 बिट्स का सीक्वेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? निबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निबल। क्या बोलते हैं? निबल। The sequence of 8 bits forms a byte। 8 बिट्स मिलकर के क्या बनाते हैं? एक बाइट बनाते हैं। The sequence of 8 bits forms a byte and can store a single numeric or alphabetical character। 1 byte can represent the 0। एक बाइट में इतने 0 होते हैं? 255, टोटल 255 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ यूनिट्स याद कर लीजिएगा। 1 GB में 1 किलोबाइट में होते हैं 1024 बाइट्स। 1 मेगाबाइट में होते हैं 1024 KB। 1 गीगाबाइट में होते हैं 1024 MB। 1 टेराबाइट में होते हैं 1024 GB और 1 पीकाबाइट में होते हैं 1024 TB। समझ में आई बात? ये यूनिट याद रखिएगा। ठीक है, 8 बिट्स मिलकर के एक बाइट बनाती हैं। बिट जो होती है 0 1 का कलेक्शन होता है। 4 बिट्स का कलेक्शन निबल कहलाता है। इतनी बात दिमाग में आपके बैठ जानी चाहिए। बैठी नहीं बैठी बताइए बच्चों, कोई डाउट है? यस सर। क्या डाउट है? पूछो। सर जब कैशे मेमोरी इतनी फास्ट होती है तो कंप्यूटर डेवलपर ने उनको मेन मेमोरी क्यों नहीं बनाया? बच्चों कैशे मेमोरी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है पैसा। जब आप कंप्यूटर, अगर मान लीजिए कैशे मेमोरी बहुत महंगी पड़ती है, अगर कैशे मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी बना देते तो कंप्यूटर की कॉस्ट ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है ना। यानी जो कंप्यूटर 50,000 का आता है वो 1 लाख का आने लगता। ठीक है, जब इतने 1 लाख का आने लगता तो कौन खरीदता? कंप्यूटर इतना पॉपुलर हो पाता? मुझे बताइए। नो सर। तो फिर इसलिए कंप्यूटर डिजाइनर ने सोचा कैशे मेमोरी कम रखते हैं। ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर, उसमें कैशे मेमोरी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि उसको बहुत फास्ट काम करना होता है, तो इसलिए उसकी कॉस्ट करीब करोड़ों में होती है, करोड़ में होती है उसकी कॉस्ट। समझ में आई बात? क्योंकि उसको बहुत फास्ट काम करना होता है। आपको इतनी फास्ट काम की जरूरत नहीं, जितनी आपको जरूरत है उस हिसाब से लैपटॉप आपको मिल जाता है। समझ में आई बात? बताइए, अभी भी कोई डाउट है? नो सर। नो सर। कंफर्म? चलिए, कंप्यूटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट मैंने बताई थी, बिट्स बताई थी। 0 और 1 जो सिग्नल होते हैं कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? बिट्स कहलाते हैं। 4 बिट्स मिलकर क्या बनाता है? एक बाइट बनाता है। क्या बनाता है? एक बाइट बनाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। 1 मेगाबाइट में होते हैं 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट में होते हैं 1024 मेगाबाइट। 1 टेराबाइट में होते हैं 1024 गीगाबाइट और 1 पीकाबाइट में होते हैं 1024 टेराबाइट। समझ में आई बात बच्चों? यस सर। चलो ठीक, नहीं आई बच्चों? क्या समझ में नहीं आया? कोई डाउट है बच्चों? मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से अभी भी। नो सर। ठीक है, तो चलिए फिर कल मैं आप लोगों को टाइप ऑफ कंप्यूटर बताता हूँ, मतलब टाइप ऑफ प्रिंटर बताता हूँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करना है। ठीक है, तो आज की जितना भी मैंने पढ़ाया ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। हो सकता है इसी में से आपको बहुत कुछ मिल जाए एग्जाम में। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, टेक केयर योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय। थैंक यू सर।